passive. In it to win it. Been with Passive since its inception. I'm proud to be a part of an organization which has seen remarkable growth in a short time, and we are here to make a difference. People driven by passion to transform businesses as a mission with innovation in AI technology, bringing you today tomorrow's technology. We believe today decides tomorrow. Every business, whether big or small, need AI today. Our fully functional facility of 72,000 SFT with two forecourt parking located right at the center of city's IT hub. Workforce seating capacity of over 1,000 employees. We ensure that facility teams have a safe and comfortable work environment. From strategy to design, implementation, and management, we are here to accelerate innovation and transform businesses. Especially small and medium enterprises are the ones that will be profited from our solutions by empowering them with modern technology to avoid any competition from large global corporations. We at OnPassive believe innovation is the key to success and motivate our teams to drive excellence. Own Passive is the only total internet solution company with complete AI-driven applications and tools. One of the first ever robust smart business solution, a one-stop solution for all your innovative and technological necessities. Passive believes in uplifting humanity and turning business ideas into reality. The founder and the CEO, Mr. Ashleigh Farring, has been an inspiration to all of us. With his constant mentorship, we have been able to build a passionate team which will drive us towards success. Our culture is a unique blend of values and skills that thrives on integrity and commitment to stand out as a champion in the industry. We nurture respect for individuals and freedom of thought to drive the extra mile to be a league of our own. It gives me the opportunity to accentuate the vision of the product and transform it into the reality. As a product owner, I am involved in defining the vision of the product from the development stage to the deployment stage. We here understand the stakeholders' need and prioritize action accordingly. Every business needs artificial intelligence, unleashing the power of AI with tens of products to suit all business needs. Our wide range of AI-based products and solutions aim to transform global enterprises digitally. As an marketing head is to spread the OnPassive brand to reach people who love technology, to connect and capture the mind space of tech entrepreneurs spread across the world. It is a great opportunity as well as a challenge for the team to chart out strategies and to activate marketing campaigns for a series of software products tapping into diverse business verticals. And the team is ready to accept the challenge. True essence of customer service is to provide world-class service, which is important in today's world. To win that is possible with simple but the best digital experience. Our passion is to get more engagement, to drive more people towards us. We focus on less operational processing and transform the business into a productive environment. We believe that customer experience is an important factor that truly needs to be a cross-functional system which can tackle any feedback given by the customer. I'm responsible for initiating the sprint planning for every product by taking inputs from technical and solution heads. Each product implementation has multiple sprint iterations. I oversee the entire process
from inception to the product implementation and give respective estimation. A top talent pool of OnPassive brings with years of technical experience and expertise. Kickstarting our journey with OnPassive as an infrastructure manager is the best decision in my life. With 14 years of experience in networking and communication, I hope to make the business operation more interconnected and efficient. Our contributions can stand against the dynamic technological progressions of the current times. New incremental updates are moved to the cloud, which helps you to get the most advanced and sophisticated technology to operate your enterprise. OnPassive, as an organization, appreciates its employees for their hard work and makes sure that they have a great time while they're at work. I believe OnPassive has a wonderful approach towards its employees and their well-being. Our AI technology services are easy to use, adapt, and scale, making our clients successful in a fully connected world. The goal of OnPassive is to make a one-stop solution for all internet users. With OnPassive, everything that you can imagine is possible. We will make it happen and we will see you at the very top. We help our clients to build stronger customer relationships, drive sales, identify new opportunities, and analyze marketing results to enhance their business. Passive, in it to win it. जी उसी में स्टार्ट करें। जी ऐसे में बिस्मिल्लाह करें। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल वहाब यासिर है। मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद पाकिस्तान से है। बाय प्रोफेशन मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ पिछले 10 साल से और मैं OnPassive का प्राउड फाउंडर हूँ। मैंने 2020 में मैंने इसको OnPassive को ज्वाइन किया था और ये आज का जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है ये वो पैगाम जो मुझ तक पहुंचा तो बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म एक प्रेजेंटेशन की शक्ल में आपसे शेयर करें। तो मैं आने वाले तमाम मेहमानों को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम टू एवरीवन, वेलकम फ्रॉम स्पेशली पाकिस्तान। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं सोमलता वर्मा मैम। प्राउड फाउंडर हैं OnPassive की, डेडिकेटेड पर्सनैलिटी हैं और हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम टाइम मैम को दें क्योंकि ये सीनियर भी हैं, इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क कर रही हैं। और आज के इस सेमिनार में मैं खुद तो बहुत सीखूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो मैम की गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखेंगे। वेलकम मैम, वेलकम बोलते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी हाँ जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैम, वेलकम वेलकम मैम, स्पेशली पाकिस्तान से वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अब बहुत बिजी स्केड्यूल रखती हैं, स्पेशल गेस्ट पे आज हमारे इस वेबिनार पे तशरीफ लेके आए हैं। इट्स रियली ऑनर फर्स्ट मैम। मैं इंशाल्लाह हम छोटी सी प्रेजेंटेशन के बाद पूरा टाइम आपके पास इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टाइम इंशाल्लाह। जी थैंक यू सो मच मैम।
जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी मैं इसके बाद तारुफ करवाना चाहूँगा, हमारे एक और लीडर हैं और प्राउड फाउंडर हैं मोहम्मद वसीम अनवर, जो कि मेरे स्पॉन्सर भी हैं। मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने वाले वसीम अनवर हैं लाहौर से। मैं दावत देना चाहूँगा कि वो आएँ और प्रेजेंटेशन का आगाज़ करें ताकि हम इसको बाकायदा इसका स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच सर, जी प्लीज़। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको वेलकम। और हमारी स्पेशल गेस्ट सोमलता वर्मा जी, उनको तो हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और थैंक यू सर। इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं, जो लोग नहीं जानते हैं, ये एक यूट्यूबर हैं और ओन पैसिव की एक डेडिकेटेड वर्कर हैं और काफ़ी हम उनके ज़रिए अपडेट लेते हैं और यूट्यूब के ज़रिए, और ओन पैसिव के लिए बहुत काम कर रही हैं। और आज उनसे उनकी ज़ुबानी उनके सफ़र के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बिजनेस प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। और इसका पर्पज़ ये है कि यहाँ पर बहुत से लोग ओन पैसिव के बारे में नहीं जानते। बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के बाद आपके पास माइक आएगा और आपकी राय ली जाएगी। तो पर्पस सिर्फ इतना है कि जब ये लोग बिजनेस प्रेजेंटेशन से जब थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा तो आपको समझने में भी उन्हें आसानी होगी, तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जिंदगी में हम सबकी कोई ना कोई प्रायोरिटीज होती है, तरजीहात होती हैं, कि जिसमें एक तरजीह तो ये होती है कि हमें बिजनेस करना है और अपने पाँव में खड़ा होना है। हमारे पास अपना घर हो, कार हो, और हम दुनिया भर में घूमें, ट्रैवल करें और रिटायरमेंट के बाद हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजारें, और हमें फाइनेंस की और टाइम की फ्रीडम हो और हम अपने आप को ग्रूम कर सकें और दूसरों की मदद कर सकें और सोशल एक्टिविटी का हिस्सा बने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट शुड वी डू, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि दो तरह के काम होते हैं, एक हार्ड वर्क होता है जो नॉर्मली लोग करते हैं। हार्ड वर्क में ये होता है कि लोग काम सुबह, जैसे कि मजदूर की मिसाल देता हूँ, वो सुबह काम करता है, पैसा कमाता है और खर्च कर देता है। और एक स्मार्ट वर्क होता है, स्मार्ट वर्क में लोग एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बनाने में 2-4 साल लगते हैं और उसके बाद वो कामयाब हो पाते हैं। लेकिन ये भी सवाल होता है, हर शख्स सिस्टम नहीं बना पाता, हर शख्स में वो कैपेबिलिटी नहीं होती, वो हैसियत नहीं होती। तो लेकिन अगर आपको सिस्टम बनाया मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा ऑन पैसिव का। ऑन पैसिव एक मैसिव मूवमेंट है। मैसिव मूवमेंट से मुराद ये है कि बहुत बड़े पैमाने की तहरीक है और ये कि छोटी मोटी वेबसाइट बेस्ड कंपनी नहीं है। और इसके अगर हम मिशन की बात करें तो इसका जो मिशन है वो ये है कि हर शख्स को कामयाबी मिले, चाहे इसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। और नॉर्मली क्या होता है कि पिछले साहब बिजनेस मॉडल में ये होता है कि हम लोग कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उसके बिजनेस मॉडल ऐसे होते हैं। लेकिन इनका मिशन ये है कि ह्यूमैनिटी बेस्ड बिजनेस है, दूसरों को फायदा हो, म्यूचुअल बेनिफिट हो। तो ये इनका मिशन है और इनका विजन है कि आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम आगे मूव करें। अगर हम ऑन पैसिव के ऑनर की बात करें, उनका नाम मिस्टर ऐश मुफारे है, उनका 20 साल का तजर्बा है, उन्होंने मास्टर डिग्री ली है। वो ना सिर्फ क्वालिफाइड है बल्कि उनका बिजनेस एक्सपीरियंस भी है और उन्होंने मुख्तलिफ बिजनेस मॉडल में स्टडी की है। कंपनी का मेन जो ऑफिस है ऑरलैंडो फ्लोरिडा में है, अमेरिका में है, और उनका प्रोडक्शन ऑफिस जो है इंडिया में है, हैदराबाद में है। 5 मंजिला जो उनकी बिल्डिंग है और वहाँ पे 600 प्लस एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ऑन पैसिव जर्नी का मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। ऑन पैसिव 2018 में इसका जर्नी स्टार्ट हुआ था, लेकिन स्टार्ट में इसका जो जर्नी स्टार्ट हुआ था वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से हुआ था, एक छोटे से प्लेटफॉर्म से हुआ था। लेकिन 2019 में उन्होंने इसको इम्प्रूव करके डिजिटल प्रोडक्ट की तरफ ले आए। यानी पहले वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे थे। 2019 में उन्होंने तय किया कि इंटरनेट
की तमाम डिजिटल जो प्रोडक्ट है उनका सोल्यूशन हम तलाश करेंगे और लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इसी दौरान उन्हें गो फंडर का आइडिया शेयर किया, जिसमें ये इनका प्रोग्राम ये था कि कंपनी के लॉन्च होने से पहले फाउंडर जो होंगे वहाँ पे $97 ज्वाइन करेंगे और उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, और उनका जो फाउंडर की जो ड्यूरेशन थी वो लॉन्च होने के बाद से लेकर 1 साल तक थी, उसके बाद वो रिन्यू हो जाना था उनका सिस्टम। और कंपनी के जो ऑफिस हैं पहले कलकत्ता बेंगलोर में, कलकत्ता इंडिया में थे, उसके बाद बेंगलोर में शिफ्ट हुए। यह प्रोडक्शन ऑफिस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अब जो उनका अपना ऑफिस है 5 मंजिला बिल्डिंग है हैदराबाद में, जहाँ 600+ स्टाफ है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद है कंपनी एक बाकायदा वर्थ है, उसकी बाकायदा ऑफिस है और हर चीज़ रियल है। ये वेबसाइट बेस्ड कोई कंपनी नहीं है। तो कंपनी की प्रोफाइल की मैं बात करूं, कंपनी एक तो डेट फ्री कंपनी, यानी इसमें कोई कर्जा नहीं है। नॉर्मली होता है कि कंपनियों में कर्जे होते हैं, कर्जा लेकर स्टार्ट की जाती है, उनका इंजाम भी वैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे ओनर हैं मिस्टर ऐश मुफारी, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मिलकर ये कंपनी बनाई और किसी से कोई 1 रुपया भी उधार नहीं लिया। एक लीगल कंपनी है, 212 में रजिस्टर्ड है, ग्लोबल कंपनी का पूरा सपोर्ट सिस्टम है, बकायदा एक उनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, कोई वेबसाइट बेस्ड कंपनी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया, रियल बिजनेस है, रियल पीपल है, रियल प्रोडक्ट्स है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन पे ये कंपनी चल रही है, यानी हर चीज 100% ऑटोमेटिक है, आपके लिए होगी। और फाइनल जो इसका कंपनी प्रोफाइल का जो फीचर है, फ्यूचर सुपर यूनिकॉर्न मैसिव मूवमेंट है। फ्यूचर सुपर यूनिकॉर्न मैसिव मूवमेंट क्या है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ये एक बहुत अच्छा फीचर है और यूनिक फीचर है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है जो 4 पिलर पर टिका हुआ है, जिसे कैटमो का नाम दिया गया है। ये कैटमो जो है एब्रिविएशन है उन 4 चीज़ों की, जैसे कि C फॉर कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन, यहाँ पर आपको इंटरनेट की तमाम चीज़ों का हल यहाँ मिलता है, इंटरनेट की तमाम चीज़ें मिलती है। A फॉर ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी काम हैं ऑटोमेटिक होंगे, रोबोट्स के जरिए होंगे। और तीसरा है टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक से मुराद ये है कि नॉर्मली जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें जो लोग विजिट करते हैं वो हमारी ट्रैफिक होती है, और हमें वो ट्रैफिक लेने के लिए हमें लोगों को हायर करना पड़ता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि जब लोगों के जरिए आप अपनी ट्रैफिक बढ़ाते हैं तो आपको बिजनेस मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ टारगेटेड ट्रैफिक मिल रही है, यानी आपको कुछ भी नहीं करना। अगर ये इसकी तीनों फीचर देखें तो इसमें ये इतनी इजी है। तो चौथा फीचर ये है कि फॉर मनी फॉर एवरीवन, यानी ये तीनों चीजें जब ये ऑटोमेटिक होंगे तो हर एक को पैसा मिलेगा। यानी बहुत ही सिंपल इसका बिजनेस मॉडल है। इसका बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है। अगर मैं सिंपली बात करूं तो पहले ये होता था कि जो बिजनेस मॉडल होते थे वहां सिर्फ जो टॉप के पीपल होते थे वही इसका फायदा उठा पाते थे। और यहाँ पर यह है कि यहाँ पर चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई पढ़ा लिखा नहीं, चाहे वो कंप्यूटर लिटरेट इतना ज्यादा नहीं है, वो भी यहाँ पर कामयाब है। यानी ये इतना कामयाब। अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका बिजनेस मॉडल कैसे ये कामयाब है दूसरी कंपनियों से, और कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो इसका फीचर है कि कंपनी जो है म्यूचुअल बेनिफिट की बात करती है। सबका बिजनेस मॉडल सिर्फ अपने बेनिफिट की बात करता था, यहाँ पे आप दूसरों को फायदा देते हैं तो आपको फायदा पहुंचता है। दूसरा इसका फीचर ये है कि आपको एक ही जगह पर तमाम चीजें एक छोटी सी प्राइस पर मिल जाती है, एक ही इंटरफेस में सारी चीजें मिल जाती हैं। और फिर ये कि यहाँ आप सेल्फ फंडिंग करते हैं, यहाँ आप किसी को पैसे नहीं देते, अपने ही पैसों को यूज करते हैं और कमाते हैं। यहाँ मार्केटर्स को कोई चीज बेचनी नहीं पड़ती, रिक्रूट नहीं करना पड़ता, इजी प्लग एंड प्ले सिस्टम है। रेजिडुअल इनकम प्लान बहुत अच्छा है, यानी आप यहाँ पर कोई चीज खरीदते हैं तो आपको पैसिव इनकम भी मिलती है, ऑटोमेटिक जो अर्निंग होती है वो भी मिलती है। और जो कि आई थिंक किसी का फीचर, किसी के बिजनेस मॉडल में ये फीचर नहीं है। फिर उन्होंने एक और अच्छा काम किया कि पुराने जो कस्टमर हैं उनके बुरे तजर्बे को कैश करवाते हुए, उनको देखते हुए उन्होंने यहाँ पर वो चीज़ें सॉल्व की हैं। मिसाल के तौर पर पहले आपको नेटवर्किंग या आपको दूसरे को लीड जनरेट करनी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती थी, कन्विंस करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर वो सारा काम रोबोट आपके लिए करेंगे। फिर ये कंपनी लॉन्च होगी तो सब काम वो भी आपने कुछ नहीं करना, सब काम रोबोट कर रहे हैं, बिजनेस भी रोबोट दे रहे हैं। तो हर चीज जो रियल इश्यूज थे आपके सॉल्व हो गए।
फिर यहाँ पे मार्केटर्स जो हैं उनका मुकाबला किसी और से नहीं, आपके अपने साथ ही है, क्योंकि आप खुद प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप खुद ये काम कर रहे हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर ये है कि 30 दिन की मनी बैक गारंटी ऑफिशियल है, यानी रिफंड पॉलिसी। आई थिंक कोई भी कंपनी आपको एक दफा पैसे ले ले, दोबारा पैसे देने की बात बिल्कुल नहीं करती, लेकिन यहाँ पर आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। और 30 दिन से ज्यादा भी लोग जो थे उन्हें पैसा वापस मिला है। अगर मैं रिसेंटली बात करूं, हमारे कल संडे को जो गुरसमंदर ढिलन जी का सेशन हुआ था, तो उन्होंने बताया था जब क्योंकि अब हमारा ओ फाउंडर्स लॉन्च हो चुका है, तो जो पैसा रिफंड कर चुके थे वो चाह रहे थे हमें वो दोबारा पोजीशन वापस मिले, लेकिन वो उन्हें पोजीशन वापस नहीं मिल सकते, उन्हें नए सिरे से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसका वो अब लोग पछता रहे हैं कि हमने वो पैसा रिफंड क्यों किया। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था सुपर यूनिकॉर्न मैसिव मूवमेंट क्या है। सुपर यूनिकॉर्न से पहले मैं आपको यूनिकॉर्न के बारे में बताऊंगा। यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जो अपनी लॉन्च होने के 10 साल के अंदर उसकी जो वर्थ है $1 बिलियन प्लस हो जाए। और सुपर यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जिसको लॉन्च होने के 10 साल के अंदर उसकी वर्थ $100 बिलियन प्लस हो जाए। तो हमारी ये कंपनी बिफोर यूनिकॉर्न बिफोर बॉर्न है, यानी अभी हमने ये कंपनी बनी भी नहीं है, अभी लॉन्च भी नहीं हुई, लेकिन ये यूनिकॉर्न बन चुकी है, जो कि बहुत अमेजिंग फीचर है। और जिस तरीके से ये इसके जो फीचर हैं, जो यही जो हमारे अब तक 10,80,000 से ज्यादा फाउंडर्स बन चुके हैं, जो कि वही उनके कस्टमर बनेंगे। तो इस तरीके से बाहर से भी कस्टमर आएंगे, यानी 1 साल के अंदर इसे सुपर यूनिकॉर्न बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, जो इसके बारे में प्रेडिक्ट की जा रही है, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल इतना कामयाब है। और यहाँ पर आपका अगर आप ऑन पैसिव का पार्ट बनते हैं, एक तो बेनिफिट मैंने पहले बता दिया, इसके अलावा आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। यहाँ पर आपको पास इतना पैसा आएगा कि आप चैरिटी करेंगे, तो यहाँ आपको वो चैरिटी करने के लिए कॉज के लिए आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, और ब्लेस की सूरत में यहाँ पे आप अपना फंड रेज कर सकते हैं और किसी को डोनेट भी कर सकते हैं। फिर सबसे अमेजिंग बात, यहाँ पे आपको जब लॉन्च होगी पेमेंट जो होगी इंस्टेंट मिलेगी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, पैसिव इनकम आपको डेली मिलेगी। और टॉप के जो मार्केटिंग कंपनियां आपके लिए काम करेंगी, हर काम ऑटोमेटिक होगा आपके लिए, क्योंकि इसके फीचर्स की वजह से गारंटीड विजिटर्स आएंगे और साइन अप करेंगे। गारंटीड विजिटर्स इसलिए बात की जाती है, एक तो इसके प्रोडक्ट काफ़ी सस्ती हैं, और इसके अलावा ये है कि नॉर्मली जब आप खुद काम करते हैं मैनुअली, तो आपके पास विजिटर तो गारंटीड होते ही हैं, तो लेकिन जब कंपनी तो रोबोट तो आपके लिए 24 घंटे काम करेंगे, तो आपके पास तो उनसे कहीं ज़्यादा विजिटर्स आएंगे। कितने विजिटर्स आएंगे वो हर एक का वेरी करेगा, लेकिन ये कि विजिटर्स आएंगे जरूर। फिर यहाँ पे जो हर चीज ऑटोमेटिक है, जो प्रोडक्ट आपको मिल रही है, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, आपको जो फाइनेंस के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो वक्त के साथ आपको रिवील होंगी। ऑन पैसिव के प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए, पहली बात तो ये है कि इसके फीचर जो है, एक तो ये यहाँ आपको किसी को प्रोडक्ट बेचनी नहीं है, रिक्रूट नहीं करना, किसी को लीड जनरेट नहीं करनी। यहाँ पे आपको गारंटेड ट्रैफिक मिलेगी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ट्रैफिक आपको यानी आपको ट्रैफिक जनरेट नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको हर चीज मिलेगी। फिर आपको एक ही लॉगिन में सारी चीजें मिलेंगी, प्लग एंड प्ले सिस्टम है, कस्टमर सपोर्ट भी आपको मिलेगी। फिर सारे जो फीचर्स हैं वो AI के साथ, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डेवलप्ड है। ये ऑन पैसिव की जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप देख सकते हैं, अगर आप इंटरनेट की तमाम प्रोडक्ट्स ऐसा ऐसा यहाँ पर आएंगे जो अभी नजर भी नहीं आ रही। इसमें से मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे कि हम अभी इस वक्त जूम का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्ट ओ कनेक्ट है। तो जूम में नॉर्मली आपको अगर 100 तो लोग फ्री होते हैं, लेकिन अगर आपको 10,000 लोग इन्वाइट करने पड़े तो आपको $6,500 पर मंथ देना पड़ते हैं, जो कि चार्जेस हैं। लेकिन वो कनेक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट है जो इससे कहीं ज्यादा इजाफी फीचर के साथ है, और यहाँ पर 10,000 तक ऑडियंस वैसी फ्री है और 1 लाख से ज्यादा लोगों की गुंजाइश है। इसी तरह मेल है, हमारी प्रोडक्ट्स है। ओ वॉलेट हमारा डिजिटल वॉलेट है, जहाँ पर हमारा कमीशन आएगा, जहाँ से हम अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया की जो हमारी जो अहम प्रोडक्ट्स है, ओ नेट है, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ओ नेट आने के बाद आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे और अब यही यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट की अगर डिटेल जानने में है तो बहुत वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि फाउंडर्स, कस्टमर और रीसेलर में क्या फ़र्क है। फाउंडर्स
लॉन्च होने से पहले $97 देकर बन रहे हैं, ताकि वो कंपनी के हिस्सेदार हैं, पार्टनर हैं। और जब कंपनी लॉन्च होंगी तो उसके बाद कोई भी आपको फाउंडर नहीं बन सकेगा, उसे अलाउ नहीं होगा जिंदगी भर। और कस्टमर्स वो हैं जो कंपनी लॉन्च होने के बाद प्रोडक्ट बाय करेंगे। नॉर्मली रीसेलर्स वो होते हैं जो नॉर्मली, अगर कस्टमर रीसेलर की बात की जाए तो कस्टमर वो होते हैं जो चीज खरीदते हैं, रीसेलर वो होते हैं जो चीजें खरीद कर बेचते हैं, कमाते हैं, दोबारा खरीदते हैं, दोबारा बेचते हैं, ये रीसेलर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अमेजिंग फीचर ये है कि जो फाउंडर्स होंगे वही कस्टमर बनेंगे, वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। जब जब जो बंदा कस्टमर बन जाएगा वो रीसेलर्स भी ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि कंपनी उसे वेबसाइट प्रोवाइड करेगी जहाँ पे रोबोट उनके लिए बिजनेस जनरेट करेंगे और उनको बेनिफिट होगा। तो कस्टमर जो आएंगे वो रीसेलर्स भी होंगे, फाउंडर्स जो होंगे, फाउंडर्स भी होंगे, कस्टमर्स भी होंगे, रीसेलर्स भी होंगे। अब ये इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि हमें पे क्या करना है। अभी हम $97 देके हम फाउंडर्स बन रहे हैं। अभी सेमी लॉन्च, जैसे कि ओ फाउंडर लॉन्च हो चुका है, जो कि सेमी लॉन्च का ये एक इनिशियल स्टेप है। सेमी लॉन्च में क्या है, सेमी लॉन्च क्या चीज़ है, क्योंकि तमाम डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, तो सेमी लॉन्च इसलिए होगा कि तमाम डिजिटल प्रोडक्ट की बीटा टेस्टिंग होती है। बीटा टेस्टिंग क्या होती है कि जब तमाम डिजिटल प्रोडक्ट, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब ये प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, खुद से टेस्ट करते हैं, उसे अल्फा टेस्टिंग बोला जाता है। और उसके बाद वो पब्लिकली कुछ लोगों से टेस्ट करवाते हैं, उनमें लोड डालकर कि वो कहीं उनमें बग्स तो नहीं है। जब एरर और बग दूर हो जाते हैं तो कंपनी बकायदा लॉन्च कर देती है। इसी तरह ये ओ फाउंडर आ चुका है, उसमें भी हम बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सेमी लॉन्च में मजीद हम बकायदा प्रोडक्ट्स की बीटा टेस्टिंग होगी, और जब तमाम बीटा टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी कंपनी लॉन्च हो जाएगी, तो उसके बाद हमें कोई फाउंडर नहीं बन सकेगा। जैसे ही कंपनी लॉन्च होगी हमें प्रोडक्ट बाय करनी होगी कस्टमर्स की तरफ। तो अभी तो हम जस्ट फाउंडर हैं, लेकिन वो हम कस्टमर भी बनेंगे, जिसकी प्राइस $200 और $300 के दरमियान में होगी, जो कि अभी डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन प्राइस इसके दरमियान में होगी, ना इससे ज़्यादा होगी ना इससे कम होगी। और यहाँ पर हमें जो मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे वो हमें मैम सोमलता वर्मा भी बताएंगी। और क्योंकि मैं अपनी प्रेजेंटेशन शॉर्ट करना चाहता हूँ, इसके अलावा एडिशनल ट्रैफिक पैकेज भी दे सकते हैं, जो कि कंपलसरी नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं वो ये पैकेज बाय कर सकते हैं ज़्यादा ट्रैफिक लेने के लिए। लेकिन अभी जो हमें जो $200-300 बाय करने के बाद जो ट्रैफिक पैकेज मिलेगा वो इनफ होगा हमें काफ़ी अर्निंग देने के लिए। फाउंडर्स बनने के क्या फायदे हैं, जबकि हम कस्टमर भी बन सकते हैं। फाउंडर बनने के बेनिफिट ये हैं कि हम तो एक वो फाउंडर्स साइट फाउंडर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, उसके इनर सर्कल में आ गए हैं, और इसके अलावा पब्लिक से पहले आए हैं, और हमें प्रायोरिटी पोजीशन दी जाएगी, हम बीटा टेस्टर होंगे। इसके अलावा हमें सजेशन देने का, आइडियाज देने का, वोट डालने का, राउंड टेबल टास्क और फीडबैक देने का भी हक होगा। और बहुत सारे हमें इजाफी ट्रैफिक भी मिलेगी, काफी बेनिफिट होंगे, हमें कस्टमर से ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ये कंपनी लॉन्च हो जाएगी तो हमें सोर्स ऑफ अर्निंग हमारा क्या होगा, हम किस तरीके से पैसा कमा सकेंगे। हम वो बहुत सारे तरीके होंगे। मार्केटिंग कैंपेन के जरिए आप कमाएंगे, ट्रैफिक पैकेज के जरिए आप कमाएंगे, पर्सनल एफर्ट से जो आईडी जनरेट करेंगे वो कमाएंगे। यहाँ पर जो जीरो टीम वाला है वो भी उतना ही कामयाब है जितना टीम वाला। यानी बना पाते तो आप नाकाम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। फिर बड़े बड़े ब्रांड आपके साथ मर्ज हो गए, वो आपको बेनिफिट देंगे। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो वक्त के साथ रिवील की जाएंगी। अगर इस कंपनी की वैल्यू की बात की जाए, जैसे कि हम बात करते हैं फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग और टेस्ला के ऑनर एलन मस्क, स्टीव जॉब जो एप्पल के हैं, इसका जेफ बेजोस है अमेजोन के, तो वो फख्र से बड़े कहते हैं कि हमने ये क्रिएट की है। इसी तरह जब ये कंपनी लॉन्च होगी तो मिस्टर ऐश मुफारे जो सीईओ कह सकेंगे, हम कह सकेंगे ऐश मुफारा क्रिएटेड पैसे, इस वर्थ की ये आखिर में मैं मिस्टर ऐश मुफारा के कोड के साथ ये प्रेजेंटेशन क्लोज करता हूँ। मिस्टर ऐश मुफारा ने कहा ऑन बेसिक करेक्शन ऑफ करप्शन, यहाँ पे यानी उन्होंने कहा है हम करप्शन की करेक्शन के लिए यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, यहाँ पर सब काम फेयर होगा और सबको उसका हक मिलेगा, चाहे वो कमीशन की सूरत में हो चाहे उनके पे की सूरत में हो। यानी यहाँ पर सब लोग कामयाब जो इंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन क्लोज करता हूँ।
अब मैं दावत देता हूँ मिस सुनीता वर्मा को कि पहले तो वो ये बताएं कि ऑन पैसिव आप ने कब ज्वाइन किया और आपका मोटिव क्या था ऑन पैसिव ज्वाइन करने का। जी थैंक यू वसीम अनवर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सब चलो मैं हिंदी में बोलती हूँ ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे पाकिस्तान के वेबिनार में इनवाइट किया एज अ गेस्ट, सो थैंक यू सो मच। और वेलकम। आई फील प्राउड कि मैं ऑन पैसिव की एक प्राउड फाउंडर हूँ। सबसे बड़ी बात, आपने मुझे मेरा इंट्रो दिया कि आपने मुझे पहले बोला कि मैं यूट्यूबर हूँ। मैं यूट्यूबर बाद में हूँ, पहले मैं ऑन पैसिव की प्राउड फाउंडर हूँ, राइट। और सबसे पहले मैं इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा एक ह्यूज मैसिव थैंक बोलना चाहूंगी मिस्टर ऐश मुफारे को, जिनकी की सोच ने सारे देश की सीमाओं को मीन्स हटा दिया। ये देखिए कहाँ हम हैं, कहाँ आप हैं और कहाँ पूरा वर्ल्ड के एक साथ लोग हम एक साथ बैठ करके बात करते हैं और पूरा ग्लोबल कम्युनिटी इस तरीके से बन गया। और ऐश मुफारे सर को बहुत बहुत शुक्रिया, गुरसविंदर ढिलन सर और जसवंत सिंह जस्सी सर, जो कि इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए, राइट। अगर वो इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में नहीं लाते तो शायद इंडिया में जो आज इतना बूम पर है इंडिया की 50% लोग जो हैं वो ऑन पैसिव में फाउंडर्स हैं, 50% से अबव। तो ये बहुत बड़ा एक फिगर है जो कि आने वाले टाइम में और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, राइट। जी बिल्कुल जी। जी आपने मुझसे पूछा कि मैंने ऑन पैसिव, सॉरी आप रिपीट कीजिए क्वेश्चन। कब ज्वाइन किया और आपका मोटिव क्या था? ओके देखिए वसीम सर, मैंने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया एक्सीडेंटली, मैंने ज्वाइन किया, सही बताऊं मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। मैं भी एमएलएम फील्ड से हूँ और एचडीएफसी में एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट मुझे 15 इयर्स हो गए। लेकिन क्या है कि जब से ऑनलाइन हुआ ना स्टार्ट, तो काम वो जो था थोड़ा ऑफलाइन जो मेरा काम था वो थोड़ा सा बंद हो गया, मीन्स स्लो हो गया, बंद तो नहीं कह सकते। धीरे धीरे मैंने कई एमएलएम को ज्वाइन किया और एमएलएम के ड्रॉबैक्स आप सभी को पता है क्या होता है। एक कंपनी नहीं, आप मीन्स लगातार आपके पास एक मौका, दो मौका, लगातार आपके पास कई मौके आते रहते हैं और अपने आप को आप रोक नहीं पाते क्योंकि हर अवसर को आप ग्रैब करना चाहते हैं। आपको लगता है ये इस कंपनी से बेटर ये है। तो मेरे साथ भी ये सिलसिला चला और करीबन 10-12 साल का मेरा अच्छा खासा खट्टा और मीठा अनुभव रहा एमएलएम का। जब एमएलएम करते करते एक पोजीशन आपकी ऐसे आ जाती है कि आप ना बिल्कुल थक जाते हो, क्योंकि क्या होता है आपको अपलाइन से आपका सपोर्ट नहीं मिलता। आपका पैसा जिस हिसाब से आपकी मेहनत है, फील्ड में मेहनत होती है, तो उस वो चीज आपको मतलब लगता है कि अरे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका आपको उसका जिसे कहते हैं ना कि आपको आपकी लागत का भी नहीं मिल रहा और सिर्फ किसका फायदा होता है, सिर्फ अपलाइन का, सुपर अपलाइंस का। तो ये धीरे धीरे ये सिलसिला कई सालों तक जब मेरे साथ चलता रहा तो मैं एक ऐसे मौके की तलाश में थी, एक ऐसे अवसर की तलाश में जिसमें कि मेरे को ये लगता था कि अब ये टाइम ऐसा आ गया कि मैं घर में बैठूं और मैं आराम से काम करूं, बट ऐसा अवसर मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन लास्ट जुलाई 2020 में मेरे जो मैं दूसरी कंपनी कर रही हूँ उसमें मोहम्मद कासिम आलम सर हैं अररिया बिहार से। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि एक अपॉर्चुनिटी है, आप करना चाहेंगी? तो उन्होंने लिंक मुझे सेंड कर दिया, बट मैंने लिंक को देखा, जैसे कि आपको पता ही है कि लिंक देखा जाता है या कुछ अपॉर्चुनिटी आपने मीन्स उसको किनारे कर दिया, आपने देखा ही नहीं। उसके बाद जब उन्होंने मुझे फिर उसके मीन्स ऑन पैसिव के बारे में लगातार कुछ और भी बातें, पोस्ट वगैरह भी भेजना स्टार्ट किया, वेबिनार के लिंक्स मेरे को भेजे, बट मैंने उनको बिल्कुल एक बार भी नहीं देखा, सही बताऊं। जुलाई से लेकर के 1-2 महीने तक मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा क्योंकि मैं थक चुकी थी बहुत ज्यादा। और उस समय पता है कोरोना भी था 2020 में, तो घर में ही बैठे थे, घर में वही टाइम पास ये वो सब चल रहा था। और शौक के तौर पे मैंने यूट्यूब अपना चैनल फिर स्टार्ट किया था, लास्ट ईयर ही मैंने स्टार्ट किया, मार्च में स्टार्ट किया मैंने। तो जब मोहम्मद कासिम सर का मेरे को दोबारा कॉल आया अगस्त में कि आप एक बार वेबिनार अटेंड कर लो, आज का वेबिनार बहुत स्पेशल है, उसमें आ रहे थे केडी शुक्ला सर। मैंने कहा ठीक है चलो मैं सुन लेती हूँ। तो बस बेमन से मैं किचन में काम करते करते फोन को मैंने लगाया और मैं सुनती रही। जब उनकी बातें मेरे दिमाग में आती रही, सुनती रही मैं उनको, केडी शुक्ला सर को, तो दिमाग जिसे कहते हैं ना परत दर परत खुलता चला गया।
लगा कि अरे कुछ कुछ नई बातें बताई जा रही हैं, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताई जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही बताएं तो बिल्कुल नहीं पता था पिछले साल तक क्या है, और आज तो नॉन स्टॉप बोल देंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो ऐसा अनुभव रहा जब उन्होंने मैंने अटेंड किया वेबिनार, तो मैंने सर को कॉल किया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है और मैं आई एम एग्री टू कम ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, आप बताइए कैसे करना। उन्होंने कहा जो मैंने लिंक दिया आप उसको रजिस्टर कर लीजिए। जब मैंने रजिस्टर कर लिया उसके बाद वेबिनार मैंने अटेंड किया और स्टडी किया, गूगल पे भी थोड़ा सा सर्च किया, तब लगा कि अरे हम कहाँ कौन से दुनिया में थे और दुनिया कहाँ जा रही है। मतलब अनबिलीवेबल कॉन्सेप्ट, यूनिक कॉन्सेप्ट, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि दुनिया में कभी आया ही नहीं, इसलिए तो विश्वास नहीं हो रहा था। तो यही है ऑन पैसिव। इसीलिए मैंने फिर ऑन पैसिव को बिना सोचे समझे, क्योंकि मोहम्मद कासिम सर ने बोला, और मैं उनका इस मंच के माध्यम से भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो आज मेरे को देना है वो मोहम्मद कासिम सर की है, अन्यथा मैं वही सब शायद वही सब कर रही होती। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल में जो जो उन लोगों को क्रेडिट देना चाहिए जो हमें किसी बात के लिए हमें मोटिवेट करते हैं और हमें एक अच्छी गाइडलाइन देते हैं। जैसे कि मैं डॉक्टर इदरीस मोदी जी को भी बहुत थैंक्स कहता हूँ, उनका बहुत मशहूर हूँ। और जी आपका ये देख रही हूँ हम वॉइस ऑफ ऑन पैसिव डेडिकेटर्स के नाम से हमने एक मिशन स्टार्ट किया है, और जी हमारा इसमें मोटिव बड़ा क्लियर है। और आप जैसे और बहुत सारे लोग भी हमारे इसका हिस्सा हैं, जो हर वो शख्स जो डेडिकेटर्स है जो ऑन पैसिव के लिए काम कर रहा है हमारे नजदीक। जी हमारा जो मोटिव ये है कि हम मुख्तलिफ जबानों में, आपको पता है इंडिया में काफ़ी ज़बानें हैं और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये जो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक में हम अपनी उर्दू में, हिंदी में या बंगला जो मेन ज़बानों में तो बात कन्वे कर देते हैं, लेकिन उन लोगों तक मैसेज नहीं पहुंच पाता क्योंकि वह ज़बान नहीं। जी सेकेंडली बिल्कुल यहाँ पर हमारा मकसद ये भी है उन लोगों को भी अप्रिशिएट किया जाए जो कि जिनको जो हिडन है, जिनका पता नहीं चल सका लेकिन वो काफी अरसे से काम भी कर रहे हैं, उनका टैलेंट बिल्कुल उनको अप्रिशिएट किया जाए। आपको पता है कि लोग अप्रिशिएशन से काफी हौसला मिलता है सबको। और आपका वैसे वॉइस ऑफ ऑन पैसिव के बारे में आपका क्या कहना है, उसके बारे में कुछ? जी जी वसीम सर, मैंने स्टार्टिंग के 2 या 3 3 एपिसोड्स मैंने अटेंड किए, और मैं यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगा। वॉइस ऑफ ऑन पैसिव की जो पहल है, जो उन्होंने एक ये मुहिम स्टार्ट की है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट रीजंस के साथ सभी लोगों को एक मौका, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत लोगों को हिंदी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती। तो ऑन पैसिव क्या है, एक आम आदमी के लिए बना है। तो वास्तव में और जो वॉइस ऑफ ऑन पैसिव अब जिन्होंने जो ये इस काम करने का जो बीड़ा उठाया है, वो वाकई में एक छोटे आदमी को बिल्कुल उसके रीच उठा के बिल्कुल बड़े प्लेटफॉर्म पे जो लाने का एक बीड़ा उठाया है, वो बिल्कुल सैल्यूट के काबिल है। बहुत ही अच्छी पहल है और मैं बहुत एंजॉय किया। मैंने मतलब समय की व्यवस्था की वजह से मैं आज और कल मैं अटेंड नहीं कर पाई, तो वैसे मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसमें मैं हमेशा उपस्थित रहूं। बिल्कुल बहुत जबरदस्त एक पहल है वॉइस ऑफ ऑन पैसिव की ये। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ तमाम लीडर्स को जो कि वॉइस ऑफ आपकी सर वॉइस नहीं है, वॉइस ब्रेकिंग। यासिर आवाज आ रही है? यासिर जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मैम आपकी तरफ इशू है, मेरी आवाज एक सेकंड, उसमें कॉल आ गए थे ना, मैं 1 मिनट कॉल करती हूँ तो फिर आ जाएगी उसमें आवाज। जी वसीम भाई आप कंटिन्यू करें, अच्छा तो चेक हो जाएगा ना। तो मेरा अब आ रही आवाज मैम? जी जी आ रही है, आवाज आवाज आ रही है। तो हमारा जो मोटिव ये था, यानी मैं इससे पहले देख रहा था कि यहाँ पर हमारे एलसी लीडर भी हैं और जिनमें गुरसमिंदर ढिल्लन और जस्टिस सिंह जो कि इंडिया में लेकर आया, जिसकी वजह से 50% तक जो जो फाउंडर बन सके इंडिया में। इसके अलावा और बहुत सारे केडी शुक्ला जी हैं, और अगर लेडीज में देखा जाए ममता जी हैं, योगिनी जी हैं, बिल्कुल योगिनी मैम है, और कौशिक पांड्या जी और मांगे राम जी, और ऐसे बहुत सारे एलसी लीडर हैं और लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो कि एलसी लीडर भी नहीं है लेकिन वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं और इसको बिल्कुल रहे हैं। वो सब इसके क्रेडिट सबको जाता है, वो सब यहाँ के डेडिकेटर्स हैं। लेकिन ये था कि वो सब तो अपना हिस्सा अदा कर ही रहे थे, तो ये हम अपना पार्ट हमने शुरू किया।
चलो इस ड्रॉबैक को कवर किया जाए, जो मल्टी लैंग्वेजेस वाला, और बिल्कुल सामने नहीं आ सके उनको अप्रिशिएट किया जाए ताकि वो आगे और अच्छी तरह काम कर सके। लेकिन ये कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो लोग आगे आए, जो लोग जिनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं वो फ्रंट पे ही काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बैक एंड पे काम करते हैं। बैक एंड पे काम कर रहे हैं, राइट। अब ये डेडिकेटर्स की जो टीम है, अगर आप देखें तो उनमें से मैं सिर्फ जावेर को ही जानता था, क्योंकि लेकिन बाकी लोग भी थे लेकिन मुझे इनका नहीं पता था। वो इसका ये बेनिफिट हुआ होगा, सब लोगों को पता चला, इसका और लोगों को भी आगे लाया जाएगा, बेनिफिट मिलेगा। और जैसे कि जे हैं, जे काफी अच्छे अरसे से आपको पता है यूट्यूब में, और सर्वनंद जी, बल्कि सर्वनंद को मैं वीरू कहता हूँ, ये जे वीरू की जोड़ी है जो कि जय बहुत वीरू की जोड़ी है, बिल्कुल राइट। और शाहीन मैम है, शाहीन मैम, और अपने नाजमा मैम है जो कि अपना चैनल भी चलाती है, नाजमा राजपूत किचन, बहुत जबरदस्त है। और ये सब हमारा एक सर्कल है, मैं आपको बताऊं, ये हम सब सर्कल है, और हम दिल्ली में ही रहते हैं, शाहीन मैम और नाजमा मैम, हम सबका एक सर्कल है, और हमें एक साथ टाइम निकालते हुए करीबन 20 साल हो गए, सही बताएं। नाजमा मैम के साथ मेरा फैमिली रिलेशन भी है, और बहुत अच्छे से हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए। और देखिए ये सब आप तो आपसे बेहतर कौन जा सकता है, ये लोग कितने टैलेंटेड हैं, ठीक है, और उनको सामने लाना चाहिए। और यहाँ पे जो अगर ये 8 या 9 बन गए, इट्स नॉट मीनिंग कि यही लोग हैं, आप भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। और मकसद सिर्फ इतना कि हमने एक ब्रांड बना दिया कि चलो इस ब्रांड से हम ये सर्विसेज देंगे, ये चीजें हम टैलेंट हंट करेंगे, ठीक है। और इसमें जे वीरू के अलावा जो आपने नाम लिया, संगीता जी हैं, वो संगीता जी का मेरे इंट्रोडक्शन हुआ, इससे पहले मुझे नहीं पता था। इसके अलावा शाहीन जी और नाजमा जी, और आप पूजा राव मैम है, पूजा राव, पूजा राव, और उनको ग्रेट पर्सनालिटी। बिल्कुल उनको अप्रिशिएट किया गया। अभी वो हैदराबाद, मैं उनके साथ हैदराबाद गई, बहुत बहुत जबरदस्त लेडी है, बहुत जबरदस्त। मैं अभी उस तरफ आ ही रहा था कि वो हैदराबाद की बात करते हैं बाद में, पहले मैं नाम ले लूं, तो नाम ना लिया तो जी जी निशांत जी हैं। जी जी जी। अगर आपने सुना हो आज के वेबिनार में, तो वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बैकएंड पे, ये सर्वनन की तरह, और उनको काफी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, और जावेर को तो सब जानते हैं, उसके बारे में तो कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। तो ये और सब मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्टर इदरीस मोदी जी, जिन्होंने ये चीज को हाईलाइट किया और ये सोचा। और आई थिंक ये देखा जाए तो ये ऑन पैसिव का ही पार्ट है, म्यूचुअल बेनिफिट, ह्यूमैनिटी, आप दूसरों के बारे में बिल्कुल, और एब्सोल्युटली। मैम ये बताइए कि जो हैदराबाद अभी आप लोग गए थे, जावेर गए थे, जावेर जाफरी, आप और पूजा राव, ये आप एक्सपीरियंस ये शेयर करें, ये आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। और आपको तो डबल वहाँ पे कहते हैं कि खुशी कि आपकी बर्थडे भी वहाँ सेलिब्रेट की गई, और आपकी ये सबसे यादगार बर्थडे होगी कि बिल्कुल इतने ज्यादा लोग आपको लाइव देख रहे थे, 20,000 की आइडिया थी आपको देख रही थी। जी बताइए वो जरा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए वसीम भाई, जो हैदराबाद का जो ट्रिप मिला उसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से अपने सभी अपलाइंस का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन लोगों ने मुझे ये मंच दिया, ऑन पैसिव जैसा मंच दिया, जिसमें कि मींस हैदराबाद ट्रिप जो था वो एक अलग चीज है, लेकिन एक रिकॉग्निशन, मेन चीज है रिकॉग्निशन, जो ऑन पैसिव में रिकॉग्नाइज किया गया हर व्यक्ति को, दैट इज इनक्रेडिबल, कि वो आप सोच भी नहीं सकते कि ऑन पैसिव आपके लिए क्या कर सकता है। लाइक जैसे केडी शुक्ला सर कहते हैं ना हर बार कि यू विल लिव लाइक अ सेलिब्रिटी इन फ्यूचर, वो फ्यूचर तो ऑन पैसिव के लॉन्चिंग के बाद जो होगा वो उसकी बात करते हैं, लेकिन अभी अगर आप फाउंडरशिप ले चुके हैं तो अभी से आप सेलिब्रिटी हैं, आप अपने आप को फील कीजिए, मानिए इस बात को, ठीक है। तो ये चीज मुझे फील हुई हैदराबाद ट्रिप में, सही बताऊं, मैंने जिस दिन 24 को हम गए थे हैदराबाद, और 23 को मॉर्निंग में जो मैंने वीडियो निकाला अपना अपलोड किया, तो उसमें मैंने यही बोला था कि 10 लोग, मुझे नहीं पता 10 लोग कौन है, वो गुरमिंदर ढिल्लन सर के साथ जाने वाले हैं, मुझे बिल्कुल 1% को भी नहीं पता था कि मैं वहां जा रही हूँ। और 23 को इवनिंग में 5 बजे मैं अपना कुछ काम कर रही थी, तो अचानक कॉल आया
तो उन्होंने कहा कि यू आर सेलेक्टेड टू गो इन हैदराबाद, वुड यू लाइक टू गो। तो मुझे लगा कि शायद कोई मुझसे कोई शायद मजाक कर रहा है, मुझे पहली बार में यही लगा। तो क्योंकि विश्वास नहीं हुआ ना बिल्कुल, तो मैंने कहा कि नहीं आप कहाँ से बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। मैंने नंबर ट्रू कॉलर पे चेक किया तो वो हैदराबाद का ही नंबर था। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास कोई मेडिकल इशू या फैमिली कोई इशू तो नहीं है, तो मीन्स आप रेडी टू गो, मॉर्निंग में आपकी फ्लाइट कर देते हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने जस्टिस सर को फोन किया। मैंने कहा उनको, उन्होंने कहा हाँ आपका नाम रिकमेंड था, बट अगर कॉल आ रही है तो दैट इज ट्रू, आप एग्री कर लीजिए, मतलब आपके ऊपर है। मैंने ठीक है, आई एम रेडी टू गो। तो इस तरीके से हैदराबाद का अचानक से जो ट्रिप हुआ वो बहुत ही सरप्राइज था। आधे घंटे के अंदर मेरा टिकटिंग हो गया, रात में पैकिंग वैकिंग, सुबह मॉर्निंग में मैं 6 o'clock घर से निकल गई थी क्योंकि 10 बजे की फ्लाइट थी। तो हैदराबाद जाने के बाद मुझे खुद नहीं पता था कि आगे कौन मिलने वाले हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, अंदाजा नहीं था। तो जब हैदराबाद एयरपोर्ट पे मैं उतरी तो वहां पर पीछे से जावेर भाई ने मुझे टच हाथ लगाया। उन्होंने कहा कि यू आर सोमलता। तो मैं भी अचानक चौंक गई कि अरे जावेर भाई आप, तो उनके लिए भी मैं भी सरप्राइज थी और वो उनके लिए मैं। तो हमें एक दूसरे को वाकई में नहीं पता था कि कौन कौन जो थे वहां पर आने वाले थे, जो गुरमिंदर ढिल्लन सर के साथ जाने वाले थे। और थोड़ी देर के बाद ढिल्लन सर भी आ गए। ढिल्लन सर एज मीन्स डाउन टू अर्थ इंसान है, मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, वो सामने थे और हम जावेद और मैं, हम दोनों बिल्कुल खड़े के खड़े रह गए उनको देखने के बाद। बिल्कुल डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, मतलब जैसे वेबिनार में हम देखते हैं ना, बोलते हैं स्टे ट्यून्ड, वैसे उन्होंने स्टे ट्यून्ड हमें कहा और उन्होंने हम दोनों को हक किया। तो वो बहुत ही एक अमेजिंग मोमेंट था कि हम एक ऐसे चेहरे से, एक और ऐसे इंसान से, पर्सनालिटी से हम रूबरू हो रहे हैं बिल्कुल सामने। उसके बाद फिर हैदराबाद हम उन्हीं के साथ जहाँ पे ऑफिस था वहां पर गुरमिंदर ढिल्लन सर के साथ ही गए और पूरे रास्ते हमने बहुत अच्छे से, मैंने ब्लॉग भी बनाया तो आपने देखा होगा शायद सभी लोगों ने। तो हैदराबाद जब हम वहां पहुंचे तो वहां का जो स्टाफ था वो भी मतलब उन्होंने इतना अच्छे से अरेंज किया हुआ था कि आपको 1% भी आपको घर की याद नहीं आई पूरे टाइम में। सही बताएं तो बिल्कुल मतलब लगा ही नहीं कि हम घर से बाहर हैं या कुछ। और जैसे उन्होंने हमारा स्वागत किया, क्योंकि ढिल्लन सर भी साथ में थे और हम सभी फाउंडर्स भी थे। बाद में पूजा मैम ने तो हमें ज्वाइन किया था करीबन रात को, क्योंकि उनको तो 4 o'clock उनको भी नहीं पता था। उनको 4 o'clock 24 को ही 4 o'clock उनको कॉल आया था कि आप हैदराबाद आ रही हैं। और वो रात को 10 सवा 10 बजे के करीब होटल में पहुंची थी। तो उस बीच में बाकी और लोग भी वहां पर मिले। मिस्टर गोपी किशन जी थे, दीपक जी थे बिहार राजस्थान से, बाकी अर्चना मैम और अनूप सर हमें मिले। तो बहुत ही अच्छी उन लोगों की कंपनी भी हमें मिली। तो बताऊं, उसके बाद हैदराबाद ऑफिस जब हमने विजिट किया तो वहां का भी जो स्टाफ था और पूरा जितना भी उन्होंने हमें दिखाया सब कुछ, वो मतलब जावेद और मैं तो सिर्फ तो हम बिल्डिंग को टच करके देख रहे थे कि हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं। मतलब बहुत ही एक होता है ना चाइल्डिश बिहेवियर, वो हम सब लोग बहुत इस तरीके से हम लोगों ने वहां पे एंजॉय किया। मतलब ऑन पैसिव ने इतना दिया है ना, बिल्डिंग को देखने के बाद लगता है कि हाँ अपने ऊपर प्राउड होता है कि हाँ जो हमारा डिसीजन था दैट इज द डिसीजन जो कि आपकी पूरी लाइफ को 360 डिग्री पर जो चेंज किया है ना, वाकई में वही चीज है। आप वहां पे एक एक फ्लोर देखिए, एक एक फ्लोर को उन्होंने दिखाया, एक एक बोर्ड रूम दिखाया, फर्स्ट फ्लोर F1 F2, मतलब इस तरीके से केबिन्स वहां बने हुए थे। इतना हाईटेक बिल्डिंग और इतना ज्यादा प्रोफेशनली उनका कलर कॉम्बिनेशन और बिल्कुल सेफ एंड सिक्योरिटी के तरीके से जो चीज वहां देखी वो अनबिलीवेबल। लेकिन क्या कि क्योंकि देखिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहां कैमरा अलाउड नहीं था तो हम पिक्स नहीं लेके आ सकते थे, लेकिन दिल में जो यादें है ना वो ताउम्र जिंदा रहेंगी। सही बताएं, वो कैमरे की तो शायद धूमिल हो जाएंगी लेकिन दिल से कोई उन यादों को नहीं निकाल सकता। तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा हमारा पूरा थ्रू आउट द जर्नी। मैम बल्कि ऐसा था कि मुझे गुरमिंदर ढिल्लन जी की कॉल आई थी कि इंडिया जाने से पहले कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। तो और वो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग मोमेंट था, क्योंकि मैंने जस्ट एक ईमेल की थी, उन्होंने मुझे कॉल कर दी। आप ये देखें ये कितनी ये कंपनी का यानी देखें कि कितनी यानी एक आदमी आपको ईमेल करता है, कोई भी सीईओ। मुझे मिस्टर आयज मुफारा ने कॉल की, 45 मिनट मेरी बात हुई। तो उसके बाद जी को मेल की, उन्होंने कॉल की। तो और फिर उन्होंने कहा कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, बल्कि उन्होंने एक बात की थी कि मैं लाहौर के करीब वाघा बॉर्डर में आऊँगा, तो आप उधर से आइएगा लाहौर से, तो हम मुलाकात करेंगे। तो शायद जी
तो बिजी रहे तो अब मैं अभी लाइव उनसे कंप्लेंट भी कर रहा हूँ कि आपने मुलाकात नहीं की, आप चले गए वापस। और मेरी कोशिश होगी कि ये सब लोग मेरे वेबिनार में आएं ताकि यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करें, जिसमें बिल्कुल आएंगे सर। ममता जी हो, योगिनी जी हो, केडी शुक्ला, मांगे राम और बहुत सारे नाम है जिनको मैं, और मुझे मुकुंद काबरा जी जो उनका टेक्निकल सेशन होता है, अनूप जी, बिल्कुल, कौशिक पांडे सर हैं। सर तो मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़े नाम है। और डॉक्टर इदरीस मोदी जी तो ऑलवेज, तो वो तो यानी इतने लविंग है, यानी कि आप जब भी मैंने कॉल की उन्हें बुलाया, 2 दफा आए। और अभी भी मुझे पता है मैं आएंगे, हालांकि वो इतने मसरूफ होते हैं, आपको पता है उनकी मसरूफियात इतनी होती हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर मोदी सर की खास बात यह है, जब भी आप कॉल करेंगे, अगर वो बिजी होंगे तो वो नहीं पिक करेंगे, लेकिन आपको बैक कॉल जरूर करेंगे। मतलब रिस्पांस 100% मिलता है। बिल्कुल 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 ऐसा ऐसा ही है। फिर ये है कि हम यहाँ से जब अभी जैसे कि मैंने उर्दू पंजाबी का लैंग्वेजेस में सिलसिला शुरू किया है, हम पंजाबी में वेबिनार कंडक्ट करना शुरू करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी जुबानें हैं पाकिस्तान में, जैसे सिंधी है, सिंधी में हमें एक लेडी मिली है, और पश्तो में एक साहब हैं यहाँ पर, तो वो वेबिनार वो करेंगे इंशाल्लाह। तो ये वो जुबानें हैं जो जो लोग नॉर्मली बोलने वाले उर्दू नहीं समझते या बोलते, या हिंदी नहीं समझते बोलते, तो उनके लिए मुश्किल होता है उस चीज़ को समझना। तो ये बड़ा हेल्पफुल होगा उन लोगों तक पैगाम पहुंचाना। तो मैम ये बताएं कि ये जो ओ फाउंडर्स लाइव अभी हुआ है, लॉन्च हुआ है, बिल्कुल, इसके बारे में बताएं, आपकी इसके बारे में क्या फीलिंग्स हैं और आपका क्या कहना है इस बारे में। देखिए, ओ फाउंडर्स लॉन्चिंग तो जिस दिन मैं हैदराबाद गई थी 24 को, जब हम लोग थे, तो उस समय इंटरनेशनल वेबिनार हमने किया, जब हमने केक कट किया एड सर के सामने, उसके बाद उन्होंने लाइव डेमो वहां का स्टार्ट कर दिया था। तो लाइव डेमो तो वहीं से स्टार्ट हो गया था, और उन्होंने कैलकुलेशन लगा के जो बताया था कि दैट इज द फिगर, जो कि फिगर उनके उसमें नहीं आ रहा था, जो कैलकुलेटर था, उसके बाद उन्होंने गूगल पे किया तो आ रहा था। तो दैट वाज अमेजिंग। शुरुआत वहीं से हो गई थी। दिमाग की जो होता है ना, पैराशूट होता है एक दिमाग, वो बिल्कुल उस समय खुल गया था कि कैलकुलेशन नहीं हो रही, एड सर से कैलकुलेशन नहीं हो रही, दैट मीन्स समथिंग डिफरेंट। तो वो चीज थी। जब वहां पे ओ फाउंडर्स जब लॉग इन हो गया था, तो मतलब मैं तो लॉग इन की जो ओ फाउंडर्स का लॉन्चिंग जो डेट है, मैं 24 ही मानती हूँ। जी बिल्कुल, 27 फ्राइडे को हुआ, वो बात अलग है। लेकिन लाइव डेमो हमने तभी देख लिया था, हमें अंदाजा हो गया था कि क्या चीज हमारे सामने इंटरनेट पे जो क्विक कहते हैं ना, भूचाल, भूकंप, जलजला, तो वो वाकई में उसी दिन आ चुका था। राइट। तो और जिस दिन 24 को फ्राइडे को जब हुआ ओ फाउंडर्स का लाइव, तो क्रॉस लगा के सब लोग बैठे हुए थे कि कब ट्रिगर दबेगा और कब हम लोग पटाखे जलाएंगे। सही बताएं, हमारे घर के आगे पटाखे हमने पहले से ही रखे हुए थे। जैसे ही 4:48 पे स्टार्ट हुआ, तो हम लॉग इन करना भूल गए, पहले हम पटाखे जलाने चले गए। बिल्कुल ऐसी ऐसी बड़ा ऐसे हुआ। और सुबह के टाइम फिर नेबर बोल रहे थे कि भाई क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, भाई क्यों क्यों सुबह सुबह पटाखे क्यों जलाए जा रहे हैं। तो उस बीच में मैं बताऊं, तो उस समय लॉग इन करना भी भूल गए। उसका परिणाम जो हुआ कि लॉग इन हमारा नहीं हुआ, हम फर्स्ट 10,000 में नहीं आ पाए। नेक्स्ट डे फिर हमारा लॉग इन हो पाया, हमारी आईडी एक्सेस ही नहीं हो पाई थी, नेक्स्ट डे हुई फिर, क्योंकि वो तो फर्स्ट उस दिन तो फिर वो एकदम से 58,000 लोगों ने तो फर्स्ट मिनट में ही अपना ट्रिगर जैसे हुआ ऑन हो गए थे। फर्स्ट मिनट में 58,000 लोगों ने लॉग इन कर लिया था। तो वो भी बहुत लकी थे जिनको कि अभी एक्सेस करने का मौका मिल रहा है। वो लोग हर प्रोडक्ट को यूज भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल तो वो चीज भी बहुत अच्छी रही उन लोगों के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा ये बहुत ही एक अमेजिंग मोमेंट था, ओ फाउंडर्स का आना, जो कि एक सॉफ्ट लॉन्च की एक पहली सीढ़ी वो हमने क्रॉस कर ली, हम सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। अभी क्या धीरे 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 डेवलप होगा, सब कुछ चीजें सामने चलती चली जाएंगी। और ये इसका एक बेनिफिट ये भी हुआ, जो लोग ये बातें करते थे कि कंपनी 2018 से ये लॉन्च हुई है, अभी तक नहीं क्यों उसकी कुछ, उनके क्वेश्चन अब ये बंद हो गए हैं। फिर सेकेंडली क्वेश्चन बंद हो गए हैं वसीम भाई, क्वेश्चन भी बंद हो गए हैं। जो नेगेटिव वीडियोस बना रहे थे, जो क्वेश्चंस कर रहे थे नाम ले लेके कि ये और वो, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन लोगों का आज तक अभी तक एक वीक से एक भी नेगेटिव वीडियो नहीं आया है। बिल्कुल ऐसे। तो दिस इज द ऑन पैसिव अब दिखाई दे रहा है लोगों को। दिस इज रियल प्लेटफॉर्म, रियल कंपनी, रियल सीईओ, रियल प्रोडक्ट्स, अभी सब कुछ दिखाई दे रहा है। उस सोच को देखिए, 2018 में जो सोच शुरू हुई, जबकि बिल्डिंग नहीं थी, प्रोडक्ट्स नहीं था, स्टाफ नहीं था,
उस टाइम सिर्फ एक विजन जो लोगों ने ऐश मुफारिस सर ने देखा और उसको जीवंत किसने किया? गुरमिंदर ढिल्लन सर ने, जसवंत सिंह जस्सी सर ने, मांगेराम सर ने। मांगेराम सर की 68,000 से भी अबव जो टीम हुई है, उसके लिए सोचिए ना उन लोगों ने कितनी मेहनत करी। अभी हम लोगों की क्या है, 1000-2000 टीम, मतलब मोस्टली लोगों की इतनी हो चुकी है। अगर बहुत ही मैं अपने सर्कल की ही बात करूं तो हम लोग तो कुछ भी नहीं, हम तो टीम वर्क पे करते ही नहीं है। वो तो टीम ऊपर वाला दे रहा है तो दे रहा है, हमें नहीं पता कहाँ से कैसे आ रही है। तो यही तो ऑन पैसे की ताकत है कि जहां सिर्फ एक विजन को सोच के हम चले, उसके साथ लाखों लोग, इतने लोग, मतलब सिर्फ एक विजन को देख के, मतलब इंसान का एक विजन जो होता है, फोकस क्लियर होना चाहिए। ऑन पैसिव में एक मेन चीज आपने क्या सीखी कि आपका अगर फोकस क्लियर है, आपको देखिए ना, पैसे किसको आए, किसी को नहीं आए ना पैसे अभी तक, लेकिन पूरा वर्ल्ड, एक जिला नहीं, एक राज्य नहीं, एक प्रांत नहीं, एक देश नहीं, पूरा वर्ल्ड एक ही फोकस पे, एक ही दिशा में चल रहा है। तो क्या है ये एक यूनिक प्लान ही तो है ना, एक सोच है, सोच को सलाम। जो कि एड सर की सोच क्या है, सिर्फ ह्यूमैनिटी को क्योंकि लेके चल रहे हैं। उन्होंने किसी और ने क्या सिखाया हमें, कोई दूसरी कंपनी, कोई भी आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें क्या है, आप पहले जॉब में जाने से पहले पूछते हैं भाई कितना सैलरी मिलेगा, कितना पगार मिलेगा। बिजनेस में भी आप इतना लगाएंगे, कितना आया, ये वो, मतलब फालतू का कितना सब कुछ। लेकिन ऑन पैसिव में आपको 1 रुपया भी आज तक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आपकी सोच देखिए कहाँ 1000 गुना बढ़ गई है। आप सोच रहे हैं कि हमें इतना आएगा तो हम ह्यूमैनिटी के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कौन सी कंपनी ने सिखाया है भाई, ये बताओ। ऐसा कौन सी कंपनी ने हमें पहले ह्यूमैनिटी के लिए, चैरिटी करने के लिए बताया है? हर कोई अपना पहले तो पेट भरता है, लेकिन यहाँ पर अपना पेट भरने का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम क्या दूसरों के लिए सोच रहे हैं, दूसरों को एकता। मेन चीज है डाइवर्सिटी इन यूनिटी। तो यूनिटी जो एक सिखाई है ऑन पैसिव ने, ये सभी मुल्कों के लिए भी एक पैगाम है, जो कि मानवता का एक संदेश जो देता है कि मीन्स सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। इंसान का विजन और इंसान के जब इरादे अगर बिल्कुल सही हो, तो हर कोई एक मॉडल पर एक ही दिशा में चल सकता है और कामयाब भी हो सकता है। बिल्कुल। और ये जो लोग यहाँ पर डेडिकेटर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो उसको बिजनेस समझ के नहीं, विजन समझ के ही कर रहे हैं। और बिजनेस नहीं समझिए, बिजनेस समझ के नहीं कर रहे, वही मैं बता रहा हूँ कि विजन समझ के ये काम कर रहे हैं वो, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। और एक बात लोगों को समझनी चाहिए, अगर वो ऑन पैसिव के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, उन्हें फाउंडर बन जाना चाहिए। और ताकि, क्योंकि वो जो फाउंडर बन के जो हम बैक ऑफिस की एक्सेस होती है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हम पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते काफ़ी चीज़ें। तो वहाँ जाके उनको इनकी जब डेली आपको अपडेट मिलेगी, इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आएगी, तो आपको आपके सवाल जवाब नहीं होंगे। क्योंकि जो फाउंडर हैं वो सवाल जवाब रखते ही नहीं है। क्योंकि जो लोग बाहर बैठे हैं, वो तो बाहर से वो पुरानी नाकाम कंपनियों के मॉडल से कंपैरिजन करते हैं, तो वो इसकी वैल्यू को समझ नहीं पा रहे। तो ये बात है। बाकी मैम इसके लिए क्या होगा वसीम भाई, अपनी मानसिकता से बाहर निकलना होगा, आपकी सोच को आपको बदलना होगा। आप वही मानसिकता में अगर जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। पहले आप अपने माइंड को, फोन को हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं ना, ताकि न्यू एप्लीकेशन डाउन हो, रिफ्रेश करते हैं। आजकल क्या हो रहा है, वो फाउंडर्स लॉगिन नहीं हो रहा, बोलते हैं ना फोन रिफ्रेश करो। ऐसे ही हम सबको अपने माइंड को रिफ्रेश करने की एक आदत बनानी पड़ेगी, तभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। मैम आपका, आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती टाइम से वक्त निकाला और ऑन पैसिव के बारे में लोगों को अवेयरनेस दी। लोगों को यहाँ काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी नहीं जानते। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से, मैं उन्हें मौका देना चाहूँगा, आप भी उन्हें सुनिएगा कि हाँ जी, एक माजिदा मैम है, कराची से हैं, और मैं उनको मौका देना चाहता हूँ। अगर उनके जूम के इश्यूज थे वॉइस के, वो मैम ये सिंस 2018 से ये फाउंडर हैं। 2018 आई थिंक हम भी नहीं है, ये 2018 से, बिल्कुल बहुत कम लोग हैं, आपको पता है 2018 से। तो ये कराची से इनका ताल्लुक है। मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ, उनको ऑप्शन दे रहा हूँ। प्लीज आप मैम आप बोलिए कुछ। माजिदा जफर नाम है इनका, माजिदा जफर मैम। अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तान से, कराची से। आवाज आ रही है मेरी? आइए, आप बात करें, सब सुन रहे हैं। जी आवाज आ रही है। मैं 21 ईयर्स से जो हूँ, स्पेशल एजुकेशन से मुंसलिक हूँ।
और ये है कि ऑन पैसिव के लिए मुझे जो है 2018 में मेरे भाई हैं, मामूजाद भाई, उन्होंने मोटिवेट किया और मैंने बिल्कुल उन पर जो है वो भरोसा कर लिया। मुझे इतना अजीब सा लगता था, मैंने 2018 में मैंने ज्वाइन किया था और 2021 में जब इसके वेबिनार शुरू हुए और नेगेटिव बातें करी लोगों ने कुछ, तो मैं हैरान हुई। मैं उस चैटिंग में होती थी, वेबिनार में, और मैं कहती थी कि मैं पाकिस्तान से भरोसा कर रही हूँ, आप लोग तो इंडिया में हो, आप लोग की तो इतनी टीम है, इतनी बड़ी टीम है, तो आप लोग भरोसा करें। तो आज मैं यकीन करिए इतना खुश हूँ, इतनी प्राउड हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि मैं जब इंशाल्लाह अपनी एकेडमी खोलूंगी स्पेशल बच्चों के हवाले से, तो वो मेरे 21 इयर्स पुराने ख्वाब पूरे होंगे। वो ख्वाब जो मैं हर बार बच्चों को पढ़ाते हुए करते हुए, कि मैं बाज इदारों में वो फैसिलिटीज नहीं होती जो हम देना चाहते हैं बच्चों को, तो अब हम अपने पास से तो दे नहीं सकते, लेकिन अब ये है कि अगर मैं अपनी एकेडमी खोलूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी ये कि मुझे इंडिया से दनिश जो हैं उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा। उनके वेबिनार में मैं चली जाती थी और मैं वहां पर भी जो है वो चैट करती थी कि ये मुझे भरोसा है, और लेकिन इसके लिए मुझे तफसीलन बताया जाए ना। फिर ये कि आज मैं कहती हूँ वसीम भाई, आपने जो लेक्चर दिया या आपने जो वेबिनार किया ना, सुपर डुपर हिट। वेरी मच और मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आप थैंक यू बहुत मैं माजदा, आपको बहुत सुनती हूँ मैम, सो बहुत मच, अच्छा लगता है मुझे। और थैंक यू बस सो थैंक यू मच। सो मच, बाकी जो बोलना चाहें। बहुत बहुत जी शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम वेलकम। जी, इस वक्त जो लोग बात करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करें प्लीज, नहीं तो हम ये वेबिनार क्लोज करते हैं। स्पेशली मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान से इंडियन वेबिनार में तो लोग हैंड रेज करते हैं, क्वेश्चन बहुत करते हैं बहुत, लेकिन यहाँ पाकिस्तान से अगर कोई हो तो स्पेशली। जमान चौधरी साहब बात करना चाह रहे हैं। जी जी जी, आपको अनम्यूट की ऑप्शन दी है जमान साहब, बात करें। जी जमान साहब खुद को अनम्यूट करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी जमान साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बात बिल्कुल आ रही है, आप बात करें। जी जी, हाँ, मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा था तुम मैडम सोमलता का। थैंक वो हमारे यू सो मच सर। तो बाकी जो है ना, मैं भी काफी ऐसे से प्राउड फाउंडर हूँ, लेकिन मैं बात नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे है फालच, तो इसलिए मैं बात नहीं करता हूँ ज्यादातर, क्योंकि मेरी जुबान रुक जाती है। कोई बात नहीं है, आप इसके लिए आपका जज्बा होना चाहिए, इसके लिए चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी क्यों सहमत है मैम, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल। मेरी जमान साहब से मॉर्निंग में बात हुई थी, जी जी इन्होंने मुझे कॉल किया था। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, ये मुझे पता है। और ये बड़े काफी एक्टिव हैं, उनको हालांकि बीमार है लेकिन काफी एक्टिव है, एक्टिवली काम करते हैं। और आई नो, मैं इनको काफी टाइम से, मैं व्हाट्सएप पर मैं इनके साथ हूँ, मुझसे ये बात भी करते हैं, चैटिंग पे अक्सर बात होती है। काफी एक्टिव हैं ऑन पैसिव के लिए। जी। और उनसे मेरा काफी यानी इंटरेक्शन रहता है, और काफी एक्टिव हैं। तो ऐसे लोगों को तो हमें अप्रिशिएट करना है, उन्हें आगे लेकर आना है। पहले जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो जमान साहब आप कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ, बस और कुछ नहीं करना चाहता, बस मैंने सोमलता का शुक्रिया अदा कर रहा था। चलिए कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की। थैंक यू सर, थैंक यू जमान सर, जमान साहब, जमान साहब। जमान साहब। कुछ और, कोई और बात करना चाहता है पाकिस्तान से? अगर आई थिंक सोमलता आसिफ मैम सर, की गुफ्तगू के बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, तो जी क्वेश्चन वहां पे होते हैं जहाँ पे। जी बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है।
तो सर यहाँ पर ना मैं देख पा रही हूँ जो मेरे अपलाइन है मोहम्मद कासिम, आप उनको अनम्यूट को एक बार ऑप्शन दे दीजिए। आप कहाँ पर है मोहम्मद कासिम? जी जी जरूर। जी ये यासिर बात कर रहे हैं? सर आप काइंडली हैंड रेज करिएगा हैंड रेज कीजिए सर। कासिम साहब। आई थिंक अभी नहीं है, जी नहीं वो है नहीं। वो जी स्टार्टिंग में थे बिल्कुल मैम, मैं देख रहा था अभी शायद वो, हाँ जी, समटाइम नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो वो जी जी एक्चुअली वो मैं बताऊं उनके शायद- बारे में। मोहम्मद कासिम सर जो इस समय हैं वो रहते बिहार में हैं, लेकिन अभी कल से वो त्रिपुरा और मेघालय शिलोंग यहाँ पर होम टू होम ऑन पैसिव की जोत जलाने गए हैं। होम टू होम मीन्स लोगों को ओ फाउंडर्स में कितनी परेशानियां जो आ रही हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है, बताऊं मैं नॉर्थ ईस्ट की मेरी काफी सारी टीम है, तो उनको मतलब डोर टू डोर वो इतनी एक सुविधा देने के लिए गए हैं कि वो ट्रेन बाय ट्रेन वो कल पहुंचे वहां पर। और अभी नेटवर्क इशू है, शायद वो इसलिए नहीं कर पा रहे, वो घर घर जाकर के लोगों की लॉगिन्स करवा रहे हैं। मेरे को दिन में भी बात हुई थी उनके साथ, मतलब वो इतना ज्यादा डेडिकेटेड है। तो अब देखिए ना, बैक ऑफिस में कितना काम ये कर रहे हैं सर, जबकि वो फ्रंट पे नहीं है कासिम सर। ऐसे बिल्कुल। जाते जाते आप ये ओ फाउंडर के लिए जो प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही है उसके लिए कोई मैसेज देना चाहें, उसके बाद हम अपना देखिए जी जी, ओ फाउंडर्स का देखिए जो लॉन्च हो चुका है, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा सॉफ्ट लॉन्च के हम अभी जो ऑफिशियल मेगा लॉन्च है उसके हम बेहद नजदीक आ चुके हैं। राइट, अब ये है कि ओ फाउंडर्स में अब जैसे कि ढिलन सर ने भी काफी बार बताया, मैंने अपनी वीडियोस के जरिए भी बताया है कि जो ये फेज वाइज इसको लॉन्च किया जा रहा है। अब ये देखिए, इससे पहले आपने बहुत सी कंपनियों को लॉन्च होते नहीं देखा, आपने कोलैप्स होते भी देखा होगा, मीन्स आज लॉन्च हुई और कल निकल गई। तो ऐसा ऑन पैसिव के साथ नहीं होने वाला। तो ये फेज वाइज जो है अब लॉन्चिंग प्रोसेस को कर रही है। धीरे धीरे इसके अंदर देखिए प्रोडक्ट्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में हमें सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स मिले थे, कल दूसरा एक ऐड ऑन हुआ, अभी हो सकता है कल जो है और हो जाए। लोगों को 403 404 करके जो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो बग्स नहीं है उसमें। ये क्या है, एक फेज वाइज है कि मीन्स कुछ लोगों को धीरे धीरे एंट्री उसके अंदर दी जा रही है। तो लोगों को ये समझना चाहिए, और मैं अपने यहाँ इस माध्यम से वेबिनार के माध्यम से मैं लोगों को यही कहूंगी कि आप पेशेंस, और आप भूल जाते हैं कि फाउंडर का सबसे बड़ा वर्चू क्या है, गुण क्या है, पेशेंस। जो 2018 से पेशेंस आज तक रखा गया है, तो वही पेशेंस अभी तो आपको क्या है, फ्रूट बिल्कुल तैयार हो गया, फ्रूट आपके पास आ चुका है खाने के लिए, तो धीरे धीरे उसको लीजिए, नहीं तो क्या होगा, फिर आपका पेट ही खराब होगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है और चीजों को बिल्कुल एंजॉय करते हुए देखिए, तभी एंजॉय के साथ आप ऑन पैसिव को करेंगे तो बिल्कुल सक्सेसफुल मॉडल है। कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे से आगे ऑफिशियल मेगा लॉन्च हो जाएगा अभी। बहुत बहुत शुक्रिया सो मच मैम। यासिर वेबिनार क्लोज कीजिए। जी जी बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। और पर्सनली मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव था, और आप बहुत ही पोलाइट और बहुत ही स्वीट तरीके से ये ऑन पैसिव को हमारे साथ शेयर कर रहे थे। थैंक यू सो मच मैम। और मेरा फर्स्ट टाइम आपसे इंटरेक्ट है, और मैं कोशिश करूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट भी है वसीम भाई के वेबिनार के थ्रू अगेन हम कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा से जहमत देंगे, जब भी आप क्योंकि बुलाएंगे मेरे लिए जी बहुत जी बड़ा जी अवसर होगा। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू मैम, सो नाइस ऑफ यू। इसी तरीके से बस मुस्कुराते रहिएगा, आपकी स्माइल बहुत स्वीट है। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल बाप भाई। सभी आने वाले पार्टिसिपेंट को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप प्लीज इसको समझिए। नहीं समझ आ रहा तो वसीम भाई से कांटेक्ट करिए। सीनियर्स यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है कि सभी से कांटेक्ट करिए। जब तक माइंड क्लियर नहीं होता आप कोशिश करिए, और हमें पूरी उम्मीद है हमारे सीनियर्स, ये जो यहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं, ये लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, जैसे कि मैम बता रही कि यहाँ पे अभी पैसे की तो बात ही नहीं हो रही, लोगों के सिर्फ कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो गए, और जैसे डोर टू डोर जाके कैंपेन चलाई जा रही है, कल को आप लोगों ने कहना है ओहो हमने तो वेबिनार अटेंड किया था, काश हमने ज्वाइन कर लिया होता, काश। तो इस जो आप फ्यूचर में आपने रिग्रेट करना है, उससे पहले ये कि आप इसको समझिए और इसको ज्वाइन करिए।
थैंक यू मैं सो मच एक- वंस अगेन जी। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, खासकर अभी मैं क्योंकि आपके वेबिनार में हूँ, मुझे जी। लगता है कि औरतों की स्थिति जो है बहुत मीन्स बुरा मत मानेगा, औरतों की स्थिति में और मतलब मैं चाहती हूँ कि औरतों का उत्थान हो, खासकर पाकिस्तान में, राइट। स्त्रियां जो है, अभी देखिए अभी बात हो रही थी, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी, जिन्होंने स्कूल की बात की थी मुझसे अभी, माजिदा स्पेशल स्कूल माजिदा अभी बात की थी, तो माजिदा ऐसी और भी माजिदा। बहुत सी तमाम, हाँ जी माजिदा मैम ने बात की थी, ऐसी तमाम औरतें होंगी जो स्त्रियां जिनके अंदर एक करने की भावना है लेकिन वो सामने नहीं आ पा रही हैं। तो ऑन पैसिव को आप घर घर में पाकिस्तान में ऐसे लेके जाइए, डोर टू डोर सर्विस भी दीजिए। आप वेबिनार कर रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप डोर टू डोर सर्विस भी अगर आप अपने ऑन पैसिव की देंगे, आप कैंपेनिंग जैसे मार्केटिंग कैंपेनिंग बड़े स्तर पे होगी, हम अपने छोटे लेवल पे क्या कर सकते हैं कि हर एक अगर आप औरत को घर में एक फाउंडर बना देंगे, पाकिस्तानी महिला को, तो वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि होता है ना कि स्त्री जो है सर कभी हारती नहीं है, उसको हराया जाता है घर के अंदर, जी जी और कि भाई लोग जी क्या जी बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल क्या मैम। कहेगा समाज, ये कह के उसको डराया जाता है, बचपन से उसके दिमाग में बैठा दिया जाता है। तो ये चीज निकालने की जो पहल है ना सर, वो चीज होनी चाहिए। तो ऑन पैसे के द्वारा आप एक स्त्री को ऊपर उठा सकते हैं, स्त्री को उठाना मीन्स पूरे समाज को उठाना, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी जी जो कि बिल्कुल आप घर बैठे अपनी पहचान बना सकते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण मैं भी हूँ सर, क्योंकि मैंने घर में बैठ के ही तो अपनी इसमें कोई पहचान शक बनाई नहीं है। है। मैं कहीं फील्ड में नहीं गई, जी फील्ड में जाते थे तो कुछ नहीं मिलता था सर, लेकिन घर बैठे ऑन पैसिव ने इतना दिया है, इतने लोगों के साथ हम इंटरेक्ट हो गए, भाई बहन इतने सारे हमें प्यारे मिल गए, देश की जी जी और जी भाषा की कोई हमें सीमाएं नहीं मिली। तो वो बहुत एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म है अपने आप को चेंज करने का। तो इस परिस्थिति को हमें पहचानना चाहिए, अगर खुद को सुधारना है, अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। जी तो जी मैं इतना ही बिल्कुल कहना मैम। चाहती हूँ। बिल्कुल हमारे गेस्ट थे, हमारे गेस्ट, उन्होंने, मैं ये आखिरी बात के साथ क्लोज करूंगा, उन्होंने मैम इतनी बड़ी बात की और इतना बड़ा हौसला था, कह रहे थे कि फ्यूचर में अपनी औलाद को प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दीजिएगा, यही काफी बिल्कुल होगा उनके बिल्कुल लिए। बिल्कुल और ये बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है मैम, और ये बहुत, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।